Jai Hind, dear students of class 12th Geography Optional. Welcome in Geography class. Today I am going to discuss the causes of migration in India. People generally are emotionally attached to their place of birth. It is very right. अपना जन्म स्थान सभी को प्रिय होता है. लोग अपने जन्म स्थल को छोड़ना नहीं चाहते. मनमोहन सिंह भारत में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी अपने जन्म स्थल ननकाना साहिब घूमने के लिए गए थे. तो जन्मस्थल तो सबको अपना प्यारा होता है. अडवाणी जी भी गए थे. बट मिलियन ऑफ पीपल्स लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस. देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजन्स. बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना घरों को छोड़ के कहीं और जाके बसते हैं. These regions are categorized as in two broad category we have discussed already in first book. Push factor, these cause people to leave their place of residence or origin, and pull factors which attract the people from different places. Push factor means the adverse condition which compel people to leave the place, and pull factor are the attractive factors which attract people to come and settle. In India, people migrate from rural to urban areas mainly due to poverty, high population pressure on land, lack of basic infrastructural facilities like healthcare, education, etc. Basically, in India, in Varanasi, I have seen, it is my own experience in our school. Mostly the students are here for study because their parents are not able to provide better education there in the villages where they are living in. They are living in village and they have taken rented house in Varanasi, and their family is living here only for better education in English medium schools. तो पढ़ने की वजह से, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से लोग शहरों में बसना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, drought, cyclonic storm, earthquake, tsunami, wars and local conflicts also give extra push to migrate. इसके अलावा जो नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी सामाजिक मारपीट, सामाजिक जो भेदभाव है उसके वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको लोकल कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं. उसके आधार पर भी लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाने पे मजबूर हो जाते हैं. On the other hand, there are pull factors which attract people from rural areas to cities. The most important pull factor for majority of the rural migrants to urban areas is better opportunity. तो सबसे मुख्य pull factor है वो क्या है? Better opportunity of what? Of what? It is of better living condition, better jobs, availability of regular work, relatively higher wages, better education, better healthcare facility, better sources of entertainment, etc. Examine the reasons for migration. For males and females separately, we have discussed already that intra-state migration is dominated by females. एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेशन करती हैं औरतों का ज्यादा होता है, फीमेल का, महिलाओं का ज्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि विवाह होता है. विवाह के बाद वो अपने मायके को छोड़ के ससुराल जाती है. लेकिन इंडिया में जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है ये मेल डोमिनेटेड है. क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स इट कैन बी सीन दैट द रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव remained the main cause for male migration. Male migration के लिए वर्क मेन कारण है, while it is only 3% for females. Contrary to this, about 65% of females move out from their parental houses following their marriage. जो अभी हमने बताया, शादी की वजह से महिलाएं माइग्रेशन ज्यादा करती है और खास करके इंट्रा स्टेट करती है, और बहुत सारी महिलाओं का इंटर स्टेट माइग्रेशन भी शादी की वजह से होता है. This is the most important cause of rural areas of India except Meghalaya, where reverse in case. मेघालय में जस्ट उल्टा है. वहां पे मेल माइग्रेशन शादी की वजह से नहीं होता है. वहां शादी की वजह से खास करके गारो लोगों में, गारो एक कम्युनिटी है, गारो खासी जयंती है, नाम सुने हो पहाड़ियों का. गारो लोगों में
महिलाओं का माइग्रेशन शादी के बाद नहीं होता है वो अपने पति के घर, पतियों का माइग्रेशन अपनी पत्नियों के घर हो जाता है। तो वहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वहाँ मदर डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसके वजह से वहाँ फीमेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज नहीं है, वहाँ मेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज है। Why is the female migration law in Meghalaya different? Because of this tradition. In comparison to these migration, marriage migration of male is only 2% in the country. Now we'll discuss about the consequences of migration. We'll discuss about the consequences of migration. Migration का क्या प्रभाव पड़ता है, migration का क्या असर होता है और किन किन चीजों पे होता है. It is important to know, and for board, from the point of view of board question, it is important part. Listen it carefully. Migration is the response to the uneven distribution of opportunities over space. It is right. Opportunities for work is not equally available everywhere. People tend to move from place of low opportunity and low safety to the place of higher opportunity and better safety. This in turn creates both benefits and problems for the areas. और इस माइग्रेशन से दोनों ही एरिया जहां से माइग्रेशन होता है और जहां के लिए होता है, दोनों ही जगह डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं. Consequences can be observed in economic, social, cultural, political and demographic terms. First, I am going to discuss about the economic consequences. A major benefit for source region is the remittances sent by migrants. बहुत बड़ा फायदा होता है इकोनॉमिक, जो लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाते हैं, घर भेजते हैं और उससे गांवों का विकास होता है, लोगों को घर बनते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, दवाइयों का सुविधा, ये सब उपलब्ध हो जाता है लोगों को पैसे आने से. In 2002, India received about $11 billion as remittances from the international migrant. You can imagine, and the main beneficiary states are the Punjab, Kerala and Tamil Nadu receives very high amount of remittances from international level. The amount of remittances sent by internal migrants is very meagre as compared to international migrants. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग माइग्रेशन किए हुए हैं वो लोग बड़े बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हैं जो थर्ड वेव में इंडियन डायस्पोरा में पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है, वो लोग बहुत सारा पैसा इंडिया में भेजते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इंडिया में है, खरीदते रहते हैं. लेकिन फिर भी इंटरनल माइग्रेशन का भी बहुत फायदा है. जो इंटरनल माइग्रेशन से लोग बाहर जाते हैं, मान लो एक यूपी के छोटे से गांव से एक बच्चा जो कि पढ़ लिख के जॉब के बिना पड़ा हुआ है, वो युवक अगर जाता है मुंबई और वहां से पैसे कमा के अपने घर को भेजता है तो उसके घर की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन कुड बी बेटर, अच्छा हो जाता है. रेमिटेंसेज आर मेनली यूज्ड फॉर व्हाट? फूड, रीपेमेंट ऑफ डेट्स, खाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मैरिजेस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदने के लिए, एटसेट्रा. For thousands of poor villages of Bihar, UP, Odisha, Andhra, Himachal, etc., remittances works as the lifeblood for their economy. अगर यूपी बिहार के लोगों को, जितने लोग बाहर हैं सभी को बुला के यूपी और बिहार में परमानेंटली रख लिया जाए तो उन लोग को खाने के लिए भी बहुत परेशानी हो जाएगी. बाद बाकी सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दो. आज जो इंडिया में रीजनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब मुंबई के लोग कहते हैं मुंबई हमारा है, बाहर के लोगों को रहने नहीं देंगे, ये सब धारणा आ रही है. इसकी वजह से इन माइग्रेशन किए हुए लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है. बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए. माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा to urban areas of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh accounted for the success of their green revolution strategy by agricultural development. पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी में जो बाहर से लेबरर पहुंचे, पहले खेती में काम करने के लिए, कटाई की बुआई के लिए जाते थे, इनके वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ. Besides this, unregulated migration to metropolitan cities of India has caused overcrowding. लेकिन ये जो अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से शहर में भीड़ बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है.
डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स हो रहा है, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं, सच एज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, कर्नाटका, you can see Delhi. These are the negative consequences of unregulated migration within the country. Now we'll discuss demographic consequences. Demographic means जनसंख्या पे क्या असर पड़ता है. Migration leads to the redistribution of the population within the country. देश में अगर यूपी से 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में बस गए तो महाराष्ट्र की आबादी 1 करोड़ अधिक हो गई और यूपी की 1 करोड़ अधिक, जो 1 करोड़ आबादी थी वो कम हो गई, माइनस में हो गई, और महाराष्ट्र में बढ़ गया, यूपी में आबादी कम हो गया. रूरल अर्बन माइग्रेशन, गांव में आबादी कम हो गई, शहरों में बढ़ गई, is one of the important factors of contributing to the population growth in cities. We all know that. Age and skill selective out migration from the rural areas. Age and skill selective out migration. Listen the word. Age and skill selective. Mostly young लोग वही migrate करते हैं and skilled लोग migrate करते हैं. Migration from rural areas have adverse effect on the rural demographic structure. However, high out migration from Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh, Eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states. कहीं का सेक्स रेशियो बहुत खराब हो गया तो कहीं का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कॉज क्या है बता रहा हूं. अगर यूपी से मेल माइग्रेशन होके बहुत सारे मेल माइग्रेंट चले गए दूसरे स्टेट में तो यूपी में फीमेल ज्यादा दिख रही है, लगता है बड़ा अच्छा है यहाँ फीमेल स्टेटस, पर ऐसा है नहीं, ये बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. और दिल्ली का बहुत खराब दिखता है क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखती है, फीमेल का रेशियो कम है. कारण क्या है, बाहर के मेल वहां माइग्रेट होके आए हैं. तो दोनों ही जगह का, जहाँ के प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, दोनों ही जगह का एज सेक्स रेशियो कंपोजिशन पे असर पड़ जाता है. बूढ़े लोग बच्चे लोग गांव में रह जाते हैं, महिलाएं गांव में रह जाती हैं, यंग चले जाते हैं शहर में, तो केवल बूढ़े लोग गांव में रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं, महिलाएं रह जाती हैं, यंग लोग कहाँ रह जाते हैं, वो चले जाते हैं माइग्रेशन करके. सिमिलर इम्बैलेंसेस आर आल्सो ब्रॉट इन द रिसिपिएंट्स स्टेट्स. ऐसा ही होता है रेसिपिएंट स्टेट में, वहां मेल अधिक हो जाते हैं फीमेल की तुलना में. कॉज ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स आर ऑल ड्यू टू दिस. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ सामाजिक असर क्या होता है, सामाजिक प्रभाव या सामाजिक आउटकम क्या होता है माइग्रेशन का. माइग्रेंट्स, ये आता है अक्सर, व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन. Migrants act as agent of social change. The new ideas related to new technologies, family planning, girls education, etc. get diffused from urban to rural areas. फैमिली प्लानिंग, गर्ल एजुकेशन वगैरह का विचारधारा शहरों से प्रभावित होकर लोग आते हैं गांव में और इसका प्रचार प्रसार होता है, एक अच्छी बात है. Migration leads also intermixing of people in city areas of diverse cultures, which has a positive contribution such as evolution of composite culture. शहर में एक नए ढंग के कल्चर का उभार होता है क्योंकि हर जगह के लोग अपने तीज त्योहार मनाते हैं और उसकी वजह से शहर में हर तरह के त्यौहार देखने को मिल जाते हैं. इंटरमिक्सिंग से एक कंपोजिट कल्चर डेवलप होता है और इससे जो मेंटल होराइजन लोगों का नैरो होता है, इस सब चीजों को देख के वाइडन होता है, वो लोग बृहद दृष्टिकोण से हर चीज को देखने लगते हैं, हर चीज को एक नैरो एंगल से नहीं देखते. बट इट ऑल्सो हैज सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन इसका बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव भी है. सच एज एनोनिमिटी व्हिच क्रिएट सोशल वैक्यूम, अकेलापन तो लोगों को सोशल वैक्यूम की तरफ ले जाता है. एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स. Continued feeling of dejection may motivate people to solve in type of antisocial activities like crime and drug abuse. और इस तरह के लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हुए क्राइम करते हैं या ड्रग एब्यूज के शिकार होते हैं. आप देखिएगा मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, खास करके अमृतसर, पंजाब में देख लो, या जहां भी देखो ड्रग एडिक्ट ज्यादा मिलते हैं. ये कैसे लोग हैं, सब माइग्रेंट्स लोग हैं, वहां जाके इस तरह से डिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, सोशली अपने को बाइकॉटेड महसूस करते हैं, वहां के लोग उनको क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह से ड्रग एब्यूज वगैरह करते हैं और क्राइम भी करते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द consequences of migration over environment, that is called environmental consequences.
ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज। सही बात है। गांव से शहर में जब लोग आके बसते हैं, एक तो शहरों में आबादी ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, अनप्लान्ड वे में शहरों का विकास हुआ है, और इनके आने की वजह से जो शहर में उपलब्ध सुविधाएं हैं उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंड सेंटी कॉलोनी। जो बहुत गरीब दबे कुचले लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी बना के स्लम्स में रहना शुरू कर देते हैं, और जो लोग कुछ मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो शहर से दूर थोड़ा गांव जो है वहां जमीन खरीद के छोटी छोटी जमीन पे घर बनाना शुरू करते हैं। वहां सीवेज की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, पीने की पानी की असुविधा होती है, बहुत सारी समस्याओं के साथ वो छोटे छोटे घर बना के रहने को मजबूर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सिटीज फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अधिक से अधिक शहरी संसाधनों रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज अवेलेबल है शहरों में, जैसे ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होने लगता है, इसकी वजह से उसका टेबल धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। एयर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, खास करके सीवेज का डिस्पोजल और मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इतना कचरा निकलता है, इसको कहाँ पे डंपिंग करें, कैसे करें साइंटिफिक वे में, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन भारत में इसकी वजह से बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का निस्तारण बहुत मुश्किल काम हो गया है। अदर्स में आ जाता है माइग्रेशन, इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन, इसको छोड़ के अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वुमेन स्टेटस को भी प्रभावित करता है। कैसे? इन द रूरल एरियाज, मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइव्स बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। मेल तो डोमिनेट, यंग मेल बच्चों को और अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को अपनी पत्नियों के जिम्मे छोड़ के दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं। इससे महिलाओं के ऊपर मेंटल और फिजिकल प्रेशर बढ़ जाता है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन इधर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहांसेस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो इंक्रीजेस देयर वल्नरेबिलिटी। लेकिन अगर महिला माइग्रेशन करती है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सामाजिक असुरक्षा का भावना भी होता है। If remittances are major benefits of the migration from the point of view of source of region, the loss of human resources, particularly highly skilled people, is the most serious cost. ये बात सच है कि जो रेमिटेंसेज यानी कि जो लोग कमा के बाहर से अपने गांव में भेजते हैं, ये बहुत बड़ा अगर फायदा है जहां के लोग माइग्रेशन करके जहां पे गए हुए हैं। सपोज करो यूपी के लोग, बिहार के लोग माइग्रेशन करके गुजरात या महाराष्ट्र गए हुए हैं, तो वहां से जो पैसा भेजते हैं उससे यूपी और बिहार में विकास का काम तो हुआ है, विकास बढ़ा है, लेकिन किसके कॉस्ट में? अपने हाईली स्किल्ड लोगों के लॉस पे। जितने पढ़े लिखे अच्छे स्किल्ड लोग थे वही लोग माइग्रेट करके जाके वहां काम करते हैं। द मार्केट फॉर एडवांस स्किल हैज बिकम ट्रूली अ ग्लोबल मार्केट एंड द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर admitting the recruiting significant professionals from highly trained professionals from poor regions। और जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स, खास करके पुअर रीजन से लोगों को जो हाईली ट्रेंड है उनको रिक्रूट करती है अपने कंपनी में कम पैसे पे। कॉन्सिक्वेंटली द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन गेट्स रीइंफोर्स्ड, और इसकी वजह से सोर्स रीजन में अंडर डेवलपमेंट जो होता है वो फिर से बढ़ना शुरू होता है। तो ये सब है consequences of migration. This all for this lesson in revision class. I hope you have enjoyed. Thank you. Have a nice day.